May it be Taliban, may it be ISIS, may it be Al Qaeda, may it be Hizbul Mujahideen, all these terror organizations are interrelated to each other. And this ghastly attack at the Kabul airport by ISIS is absolutely condemnable and horrible. 60 people have been killed, and 13 of them are US soldiers. This entire Afghanistan scenario has been created by America only and nobody else. You came to Afghanistan to remove Taliban, but you are leaving Afghanistan at the hands of Taliban. What is new that you have done in Afghanistan? You have not been successful in empowering or in training the Afghan troops. You have not been successful in pumping motivation into them. You have not been successful in keeping your weapons and all your equipments in safe hands of the Afghan army. And look what you have turned Afghanistan into. It is nothing but it is going to be a graveyard. You see thousands of people coming to the airport to get evacuated from there. They want to leave the country. They want to take refuge in other countries. They are traveling for about 5 to 6 days and waiting there outside the Kabul airport for another 5 to 6 days for an aircraft to take them away from there. They are dying there outside the Kabul airport due to thirst and hunger. Is this the kind of Afghanistan that you had decided to leave? America should think on what it has done, and America should definitely introspect as to what steps it should take further. There is just no point in saying that we will hunt you down and we will kill you down, all those people who have done this. You will have to do that. But then, is that the permanent solution of all this? No. The permanent solution of all this is something else. It is you who has created these people, and it is you who have to tackle with them. They have turned into a so-called Bhasmasur in our Indian language that we say. And that is why America now needs to think about its actions, and the world needs to come together and take some strong steps. चाहे वो तालिबान हो, चाहे अल-कायदा हो, चाहे आईसिस हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, सारे आतंकवादी संगठन ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये सारे जो आतंकवादी हैं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आतंक फैलाना। वही हमने काबुल एयरपोर्ट के बाहर कल देखा हुआ है कि 2 जो बड़े बम धमाके वहां पर हुए हैं, जिसमें 60 लोगों की जान गई हुई है, जिसमें से 13 अमेरिकी सोल्जर्स थे। और ये सारी घटनाएं ऐसी होंगी, इसका अंदेशा शायद पूरी दुनिया ने लगाया था और हम सबको था कि कुछ ना कुछ घटना तो अफगानिस्तान में होगी ही होगी, क्योंकि तालिबान ये बिना ब्लड शेड किए ये अफगानिस्तान के ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के भाग जाने के बाद। लेकिन वहां पर अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए उसको ब्लड शेड करना ही होगा, इसका अंदेशा सबको था। 13 आपके अमेरिकी सोल्जर्स को मार दिया आईसिस के बम धमाके ने, और उसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वी विल हंट यू डाउन एंड वी विल फाइंड यू फ्रॉम वेयर यू आर एंड वी विल किल यू। अमेरिका को ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जो पूरा अफगानिस्तान का जो सिनारियो है, ये तालिबान जो भी कर रहा है, ये आपका ही किया धरा है। आप ही अफगानिस्तान के अंदर घुसे थे तालिबान को वहां से निकालने के लिए, लेकिन आज आप अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में सौंप कर जा रहे हैं। आपने क्यों नहीं अफगान आर्मी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया? आपने क्यों नहीं उनको जब हथियार दिए, इक्विपमेंट्स दिया, तब आपने ये क्यों नहीं इंश्योर किया कि वो सेफ रखे हुए हैं? वो क्यों आपने तालिबान के हाथ में जाने दिया? मतलब ऐसा ही हुआ ना कि आपने तालिबानियों को हथियार दिए और इक्विपमेंट्स दिए और उनको बोला कि आप लगाओ यहां पर अपने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दो। अमेरिका, जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान की जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें फेल हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी यह है कि अभी अमेरिका को सोचना चाहिए कि क्या कदम लिए जाए वहां पर।
एयरपोर्ट के बाहर हम देखते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको अफगानिस्तान छोड़ना है, तालिबानों के हाथों में मरना नहीं है। 5-6 दिन दूर ट्रैवल करके आते हैं, प्लस कोई एयरक्राफ्ट मिले जहां से हम यहां से निकल पाए, उसके लिए 5-6 दिन रुकते हैं, ना पानी पीने के लिए, ना खाना खाने के लिए। वहीं पर लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं। क्या इसी के लिए आपने अफगानिस्तान में कदम रखा था अमेरिका ने? यह अमेरिका को सोचना चाहिए। आज जो अफगानिस्तान की हालत बनी है, ये सिर्फ आपके कारण बनी है, और इसीलिए कुछ सोचना पड़ेगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अमेरिका को। आप ही ने भस्मासुर पैदा किया है जो आपको अभी खा रहा है। सिर्फ धमकियां दे के नहीं होगा, वी विल हंट यू डाउन, लेकिन आपको और पूरी दुनिया को एकत्रित आकर कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा।